Good morning, students. I am your science teacher, myself Pooja Nayak, and this one is your new book, see Cordova Learning Series. Got it? Science Mad Easy, and your book content total 18 chapters. Got it? So today we will start from chapter first, crop production and management. You can also write the topic in your notebook, crop production and management. है ना? Crop production and management. Simple. So today we will start from a very basic topic which is called food. है ना? So you have read in class 6th, even class 5th. What is a food? Food are that sources which required by our body, and after getting the food, our body get an energy and perform lots of activities which are required by our body, and even we can say that food is very necessary to get in our body life, and as well as repair a worn out cell and perform different life activities. Simple. So we take a food in different form like animal sources from the and plant sources. For example, plant sources, we take a different type of pulses, weeds, rice, vegetables, fruits and so on. We take a different food from the plants. That all are plant sources categories of food, and second category animal sources. And animal sources, for example, meat, flesh and water, as well as honey which we get from honeybees, and eggs which we get from hens and ducks. Got it? So these are animal sources of food. Simple. Now your topic and your syllabus contain the basically term related to crop production and management. है ना? So we know that all the human being, even all the living thing required food, but we are talking about only human beings. So whole the population which present in all over the world, these all population require food daily. So our branch of science, agriculture, this branch of science, agriculture, which deals with the overall food demand of whole the population, and these science branch calculate the food demand as well as the production demand of the all the population. सिंपल. यानी कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जितने भी पॉपुलेशन है, वो सारी पॉपुलेशन की फूड डिमांड को पूरा करना, और उसे पूरा करने के लिए जितना फूड रिक्वायर्ड होना चाहिए और कितना फूड हमें ग्रो करना है एज अ प्लांट, है ना, वो सारा मैनेजमेंट कौन करता है? हमारी साइंस की एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर. ओके, सो एग्रीकल्चर डील्स विद ओवरऑल फूड डिमांड ऑफ होल द पॉपुलेशन, its production as well as management. Simple. Now the word arise the crop. What is a crop? When we grow any plant. So single plant or we can say that single form of any plant is called a simply plant. But whenever we grow a same type of plant in a particular area, in a particular field, that is called crops. यानी कि क्रॉप्स एक प्लूरल फॉर्म है किसका? सेम टाइप के प्लांट्स का. ठीक है, सपोज दैट वन प्लांट इज वीट, है ना. अब एक वीट प्लांट है, अब उसी तरह नंबर ऑफ वीट प्लांट्स को अगर ग्रो किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ वीट प्लांट्स? नो, उसे हम कहेंगे वीट क्रॉप्स. क्या कहेंगे उसे? वीट क्रॉप. वीट क्रॉप का मतलब होता है गेहूं की फसल, है ना. आप हिंदी वर्ड में उसे फसल कहते हो, तो फसल का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब क्या होता है? यानी कि सेम टाइप का प्लांट है बट वो नंबर ऑफ उसी के सेम प्लांट ग्रो किए हैं और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर. ठीक है, यानी कि आपने अपने फील्ड या खेतों पर देखा होगा, जब सेम टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है जितने भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं. सिंपल. सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज अ क्रॉप. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन. अब क्रॉप क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि क्या एक फैमिली में
वन वीट प्लांट लगाने से क्या उतने वीट उसे दिन भर मिल सकते हैं जितना वो डेली फैमिली मेम्बर फूड के फॉर्म में खाते हैं, है ना। यानी कि सपोज कर लो चपाती बनती है, वीट से क्या बनता है, चपाती। तो क्या एक प्लांट ग्रो करने से उस पर इतना वीट अवेलेबल हो सकता है जो डेली सारे मेंबर चपाती खा सके उससे? इम्पॉसिबल ना। क्या एक राइस प्लांट लग सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल थिंग। सो आवर साइंस branch agriculture arrange the all food for population, for example wheat, rice, pulses, vegetable, fruits, so they grow crops of that particular plant। ठीक है, मतलब जैसे गेहूँ है तो इतने सारी पॉपुलेशन को डेली ज़्यादा से ज़्यादा वीट फ्लोर चाहिए, और वीट फ्लोर किससे मिलेगा? वीट से मिलेगा। और हर फैमिली में वीट की डिमांड पूरी करने के लिए वीट क्रॉप लगाना बेटर है, न कि वीट प्लांट, है ना। एक या दो प्लांट से वीट की डिमांड पूरी नहीं हो सकती, तो वीट क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है। तो इसी तरह जो भी फूड डिमांड है उसकी क्रॉप्स को ग्रो करवाने से वो डिमांड फुलफिल हो जाती है, और इसीलिए उसे कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स ग्रो करना, ठीक है। और जो फार्मर होता है, आपने देखा होगा उसके पास एक पर्टिकुलर स्पेस है, उस स्पेस में वो कंटिन्यू या तो वीट क्रॉप है या तो राइस क्रॉप है, ठीक है, या वेजिटेबल्स है, वो ग्रो करता है, मार्केट में सेल करता है, खुद की फैमिली में यूटिलाइज करता है, और जो भी मार्केट में सेल करता है वो कहाँ जाता है? दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास जो सिटी में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो उन्हें भी तो फूड चाहिए ना, तो वो मार्केट से परचेस कर लेते हैं। इस प्रकार फार्मर जब कोई क्रॉप ग्रो करता है तो वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सारी फैमिली तक वो फूड चला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्रॉप प्रोडक्शन को समझ लिया। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सेम टाइप के प्लांट को ग्रो करना पर्टिकुलर एरिया में, प्रोडक्शन मतलब प्रॉपर प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना मतलब उगाना, ठीक है, उसका मैनेजमेंट करना, प्रॉपर उसकी केयर करना, ठीक है, और देन उसकी हार्वेस्टिंग करना, ठीक है। एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है उसका मैनेजमेंट मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में कितना क्रॉप्स ग्रो हो सकती है, और जितनी क्रॉप ग्रो होती है उसकी प्रॉपर टन्स के फॉर्म में या फिर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करना, उसकी क्वांटिटी डिसाइड करना, सिटी में जाकर उसे सेल करना, ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। केवल हार्वेस्टिंग करके डायरेक्ट सेल करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। उसका प्रॉपर अर्निंग जो मिलता है उससे हम न्यू क्रॉप ग्रो करते हैं दूसरे फार्मर्स, है ना, तो ये सारा मैनेजमेंट रहता है। तो here you have already discussed about agriculture, which is science branch, which deals with food demand of the population. Second term, crops and cropping pattern. So crops we have already understood in crop management introduction, same type of plant when growing in a particular area. And cropping pattern. Now you know that when we require a wheat, मानो हमें गेहूं की ज़रूरत है, तो ऐसा होता है कि मर्जी पड़ी तब जाकर हमने वीट क्रॉप ग्रो कर दी? नहीं, वीट क्रॉप के लिए प्रॉपर सीजन होती है, क्योंकि हर प्लांट के लिए, हर क्रॉप के लिए एक प्रॉपर सीजन होनी चाहिए, और उसके न्यूट्रिएंट्स भी और फेवरेबल एटमॉस्फेयर भी उसे मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल राइस क्रॉप्स है, ठीक है, राइस क्रॉप्स है या सोयाबीन है, हमें पता है कि उन्हें किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है? वाटर, है ना। तो सोयाबीन प्लांट जो होगा वो वाटर में बहुत अच्छे से ग्रो होगा, राइस क्रॉप्स को भी वाटर अच्छे से चाहिए, तो उसी लिए उसे कब ग्रो किया जाता है? रेनी सीजन में। तो जब हम किसी भी क्रॉप को उसके सूटेबल फेवरेबल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जब ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न 2 टाइप्स में होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। नाउ व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स? all the crops which are sown in the beginning of June and July and harvested in the month of September, October, ठीक है, जिसमें हम जून जुलाई मंथ में ग्रो करते हैं, सॉ मतलब बोना, और इसकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर में। उसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल सोयाबीन, राइस, सिंपल। सेम उसी तरह रबी क्रॉप्स, सेकेंड टाइप क्या होता है? रबी क्रॉप्स। नाउ व्हाट इज रबी क्रॉप्स? विच आर sown in the beginning of September, October,
ठीक है। तो जैसे अक्टूबर मंथ में ग्रो किया जाता है, सॉ किया जाता है, और हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, वीट्स है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है उसके लिए, वीट है। एंड अदर वेजिटेबल्स ऑल्सो। सो देर आर two types of cropping pattern depending upon the weather condition, favorable atmosphere of that crops. First one Kharif and Rabi. So you can also write the example of Kharif crop, soyabean and rice, and Rabi crops, wheat, gram. Now we will discuss about the agriculture practices, your new and very important topic, agriculture practices. You know that agriculture, that means simple growing of crop, that means production करना and management करना, that is not an easy task. Even these process also happen in the step by step procedure. Okay, so in next lecture we will discuss about the agriculture practices. Agriculture practices means step by step or proper method to grow a crop एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, क्रॉप को मतलब बोने से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग करके प्रॉपर पैकेजिंग करके सप्लाई करने तक जितनी भी स्टेप्स होती है जो एक फार्मर अप्लाई करता है, उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो आई विल सेंड दिस 2 pages of your book, and whatever I have explained to you in today's class you will read in your book. Okay, and then I will ask some very short answer type question to you after completion this chapter. Okay, and if you have any doubts so you can ask within a 10 minute. Please ask me if you have any doubt. Okay, thank you.